Hello. A very good evening to all my dear students. And I love this punctuality. Hi Sunita, hi Abhi. और कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ? A very warm welcome to all of you. Hi Arusha. Very good evening to all of you. Alright, so this is Devika and we are discussing the sample question papers. So we have got the questions from different sets of sample papers, right? And these are absolutely very important for your examination time. Yo, yes! Excited to start? Today we are going to do a lot of hereditary wala MCQs and some of the subjective questions from the entire syllabus of grade 10 CBSE biology, my dear students. Very good evening to all of you. Very good evening. Right, so without further ado, let's get started. And I want answers to be here, right? फटाफट आंसर्स आने चाहिए, राइट? फटाफट आंसर आने चाहिए. ग्रेड 9 का होगा चालू फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, तब तक शायद आप ग्रेड 8 में आ जाओगे, राइट गेस्ट? सो या, let's go. What is the first question? Distinguish between blood and lymph. Yeah, this is a very important topic and many students have confusion regarding what is blood and what is lymph, right? What is blood and what is lymph? We always have this confusion, isn't it? Thank you dear for your love. Please hit the like button if you like it, right? So now in our previous classes also I have told you a trick to remember what is the difference. What is the difference? The difference is that lymph is nothing but blood minus RBC. Blood minus RBC is what? Blood minus RBC is your lymph. So what is the difference? I don't see any differences coming. Yes Jay, fantastic. Come on. Very good Sunita. Yes Vishnu. And this is what I want, okay? This is what I want. I don't want you guys to wait. I want you guys to keep giving the answers. Let's recall. Very good. So what is the difference between blood and lymph? ठीक है? So first of all, blood is reddish in color because of the heme pigment, है ना? हीमोग्लोबिन होता है इस वजह से. lymph कैसा है? lymph does not have RBC नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है तो रेड पिगमेंट नहीं है, इसलिए ये एक colorless fluid होता है. Then it is a part of circulatory system. RBC, सारे cells, WBCs, platelets, the plasma, blood, right? So it is a part of circulatory system. lymph क्या है? lymphatic system का पार्ट है. lymphatic system एक पैरेलल सिस्टम होती है वेसल्स की जो हमारे टिश्यूज में घूमते रहती है, जहां से वो ड्रेनेज लेती है टिश्यूज से और फिर वापस ब्लड में डाल देती है, राइट? All right Nirali, come on. So it is involved in circulation of nutrients, hormones, oxygen, right? And carbon dioxide waste and other toxic substances. Whereas this helps the body as in defense and a part of immune system. क्यों भैया? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा WBCs मौजूद रहती है. ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा WBCs are what? Are fighter cells, right? जो हमें हमारी इम्यूनिटी देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं from to fight against the pathogens. Correct? Ready, steady, go. Answers in the chat box guys, फटाफट. Exchange of genetic material take place कहाँ पे? कौन सी process of reproduction में? Is it in the vegetative reproduction? Is it in the asexual reproduction? Is it in the sexual reproduction? या फिर budding? Right. Got your point captured? Yeah, captured moments. Got your point. Thank you. Please hit the like button at the same time, dear. Right? Okay. So, what do you think? Fantastic. So, Vishnu and Mahek, right? Very good. It's the C, right?
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल बिल्कुल AK चौधरी, राइट. सो इट इज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये process of genetic material mixing take place, right, because two parents are involved over there. Very good. Now the flow of signal in a synapse, what is synapse guys? पहले तो बताओ what is synapse. ठीक है, what is synapse? synapse क्या है, किसे हम synapse कहते हैं, right? Why there is a unidirectional flow? इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि why there is a unidirectional flow. अंशुता, yes अंशुता, right? ठीक है बेटा, yes yes I know you told, right? So why there is a unidirectional flow? How is the flow? Till you give me the answers. So how is the flow? So the flow is between two neurons, right? Two neurons. And ये जो flow होता है कैसे होता है? From the dendritic end, तो यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन का दूसरा डेंड्राइटिक एंड लग जाएगा, है ना, इस तरीके से. एंड हाउ इज द फ्लो हैपनिंग? द फ्लो इज हैपनिंग ओनली इन दिस डायरेक्शन, ओनली इन one direction, that is from dendrite to axon terminal, फिर dendrite, फिर axon terminal. Why not in the other way round? So the reason behind it is it acts like a one way valve. नहीं नहीं, कोशिश करो. Let me tell you what happens is, so what is synapse? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं synapse क्या है. This is the axon terminal of one न्यूरॉन. इसको मैंने मैग्नीफाई करके बताया आपको, ठीक है, ये पार्ट मैग्नीफाई करके हम यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान दीजिए. तो ये एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे क्या होते हैं, इन एक्सॉन टर्मिनल्स पे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट? क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स. यस यस करेक्ट विष्णु, राइट. बट यहाँ पे वेरी करेक्ट. सो दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर डिफ्यूज्ड ओवर हियर, ठीक है. ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दिस आर डिफ्यूज्ड आउट and that is then sensed by the dendritic end of the other one, right? Dendritic end दूसरा, और ये है axon का end, axon terminal. axon terminal, ठीक है. इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स, राइट. इस गैप को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ साइनैप्स, right? So how is the current flowing over here? How is the signal flowing? So from this side it is coming in an electrical impulse, right? Then this electrical impulse kind of, you know, pushes this enzymes, the neurotransmitter, to be secreted. The neurotransmitter are then sensed by this, and then it is by the dendritic end, and then it is moved forward in again electrical impulse, right, impulses, right? So now that is why this is unidirectional, people. That is why this is unidirectional. क्योंकि axon terminal पे ही आपके न्यूरॉन ट्रांसमीटर है, डेंड्राइट्स पे है क्या, डेंड्राइट्स पे है क्या, नहीं, राइट. दे आर नॉट देयर. सो डू व्हाटएवर में से. अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसका एक ही इलाज है कि ओनली एंड ओनली सिंगल डायरेक्शनल फ्लो. तो आपके लिए मैंने आंसर अभी जो बताया, दैट इज रिटन इन प्रॉपर लैंग्वेज फॉर यू टू रेफर. इसकी नोट्स आपको कहाँ मिलती है गाइस? वेयर डू यू फाइंड द नोट्स ओवर हियर? ये नोट्स आपको कहाँ मिलती है? टेलीग्राम चैनल में मिलती है, राइट. Join it after the class. You can take down these notes along with the answers. उसी लिए मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ. चलो, ये पी जेनेटिक हेरिडिटी वाला चैप्टर. So two pink flowers, one on crossing, right, result in one red, two pink, one white flower progeny. The nature of the cross is called as. Very good, Anshita, Vishnu, right.
फंटास्टिक जय। अब इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ कि दो पिंक फ्लावर्स हैं, ठीक है, दो पिंक फ्लावर्स है एंड दे वर pink colored flowers on crossing over gave 1:2:1 का रेशो। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या बोला है, पिंक फ्लावर है ना, पिंक फ्लावर है, लेकिन रेशो कैसा आ रहा है, ऐसा रेशो आ रहा है, ऐसा रेशो आ रहा है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन है, मतलब कंडीशन कैसी है, कुछ इस तरीके से है, राइट, कुछ इस तरीके से है। सो व्हेन यू डू अ क्रॉस बिटवीन दिस, इसको हम क्या कहते हैं, F1। F1 को जब हम सेल्फ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसे F2 जनरेशन निकालने के लिए व्हाट डू, वी डू सेल्फिंग, राइट, वी डू सेल्फिंग, है ना, सेल्फ क्रॉस करते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फंटास्टिक, fantastic. Okay, define food chain, explain why the flow of energy is always unidirectional, कभी भी उल्टा क्यों नहीं होता है। सिंपल चीज है, फूड चेन क्या है, व्हाट इज द कीवर्ड दैट यू आर गोइंग टू यूज हियर पीपल, जस्ट गिव मी द कीवर्ड, पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी हु कैन रिमेंबर द कीवर्ड। व्हाट इज अ फूड चेन, चेन इज अ series, yes, what do I tell you always, जीवश्य जीवश्यम, एक जीव दूसरे जीव को खाते चलता है। so then this is a series of organism, right, yes। ये क्वेश्चन फूड चेन के अराउंड फ्रॉम एनवायरमेंटल चैप्टर, एक क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा, 100% गारंटी, ठीक है, फंटास्टिक, राइट। सो फूड चेन क्या है, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन ईच अदर, दे फीड ऑन वन अनदर, एंड फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस है, सीरीज बोला है तो लीनियर सीक्वेंस है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वेयर द, जिसको खा लिया, ठीक है, हर्बीवरस जो है वो अब प्लांट्स को एनर्जी वापस नहीं कर सकता, प्लांट क्या सन को एनर्जी वापस करेगा, नहीं, राइट, it is not possible. That is why when the energy is transferred from one organism to another, it occurs when one organism consumes the another organism. ये कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, on feeding on another organism, on consumption of another organism. So एक बार खा गया तो वो मर गया, ठीक है, वापस थोड़ी आने वाला है, right, that is why। चलो, a cross between capital T homozygous tall plant, right, and a short plant, that's a dwarf plant, right, small t result in the progeny that was all tall। why, क्यों, मतलब ये बोल रहा है कि F1 जनरेशन में 100% कैसे थे, ऐसे थे भैया, ऐसे थे, कैसे, टॉल थे, क्यों, why were they all tall, tallness is a, यार ऑप्शन देखो एक बार, टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, टॉलनेस इज अ रेसेसिव ट्रेट, हाइट ऑफ द पी प्लांट इज गवर्न्ड बाय द जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी। पहली बात ये बता रहा है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यस। सो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात हो रही है यहाँ पे। मेंडल का जो लॉ था डोमिनेंस वाला, उसकी बात हो रही है, राइट। सो टॉलनेस इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड हेंस इट वाज, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, the characters that will appear in the F1 generation
would always be 100% dominant characters, right? और इसीलिए A is the correct answer, right? Fantastic. Mention the effect governing energy demand of environment. Give recommendation for lowering the energy consumption, right? Mention the effect of governing energy demand of the environment. कौन सा इफेक्ट यहाँ पे कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे increasing the demand of energy is leading to the rapid consumption of fossil fuels, right? जो कि exhausting rate है, and that is why you know this question will go ahead. ठीक है? In a round green seed pea plant, in a round seed, कैसा है? राउंड है, ग्रीन है, सीड ऑफ पी प्लांट, मतलब कैपिटल आर स्मॉल y is crossed with wrinkled yellow, मतलब कि स्मॉल आर कैपिटल Y, the seed produced in F1 generation would be what? F1 generation is what? What is F1 generation then? What characteristic? Will they be round and yellow, round and green, wrinkled and green की wrinkled and yellow? Dominant characteristic are told there. Capital R मतलब कि round, ठीक है? Wrinkled and yellow मतलब कि yes जय, तो yellow मतलब कि very good Vishnu, very good. Fantastic. So, किस का जवाब यही आया? How many of you came on the same thing, round and yellow? सब सहमत है? सब सहमत है इस चीज से? सही जा रहा है? प्री बोर्ड में आया था. Fantastic. देखो, अरे वही से लेके आ रही हूँ यार, मैं सारे स्कूल्स के सैम्पल पेपर्स से ही लेके आ रही हूँ. यही सैम्पल पेपर्स क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का आएंगे यार, पक्का आएंगे, गारंटी कर लो, ठीक है? कि हम जो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का भी सॉल्यूशंस कर रहे हैं, दिस क्वेश्चंस 90% ऑफ देम विल अपीयर इन योर CBSE एग्जामिनेशन फॉर श्योर. ओके, चलो, so fantastic. Mention the difference between cross pollination and self pollination. Identify the location of fertilization in the flower and mention the formation of product. Now, show the following parts in the pistil. Label diagram. Stigma, style, ovary and female germ cell. Right? ठीक है, थैंक यू कार. सो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. हो गया? क्या क्या कहने लेबल करने के लिए कहा है? बोला है स्टिग्मा को लेबल करो, तो दिस इज योर स्टिग्मा, ठीक है? द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज योर स्टाइल, ठीक है? ये स्टाइल है. और फिर नीचे जो स्वोलन पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं. ओवरी के अंदर क्या होता है? फीमेल गमेटिक सेल्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ओवा कहा जाता है. ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं, राइट? तो ये हो गया पार्ट बी का आंसर. क्लियर है? रेडी? पार्ट ए का आंसर क्या होगा? मेंशन द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन. सो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, चलो बताओ मुझे. सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को याद रखने की एक ट्रिक बताई थी. क्या बोला था? कि सेल्फ पॉलिनेशन, राइट? नो जय, टू फ्लावर्स नहीं, हमें क्या याद रखना है बेटा? प्लांट्स. वेरी क्लोज है, बट हमें क्या याद रखना है? प्लांट्स. राइट? है कि नहीं? तो सेल्फ
अगर क्रॉस हो रहा है तो मतलब दो प्लांट्स आर इन्वॉल्व। अगर सेल्फ हो रहा है तो सेल्फ दो परिस्थिति में हो सकता है बेटा। कैसे? सेल्फ जो है दो परिस्थिति में हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। इसका पोलन ग्रेन आके इसी पे गिर रहा है, या फिर इसका पोलन ग्रेन आके दूसरे फ्लावर पे गिर रहा है, लेकिन द सेम प्लांट इज इन्वॉल्व। क्या है? सेम प्लांट है, राइट, सेम प्लांट इन्वॉल्व है। तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। दिस इज फ्रॉम योर रिप्रोडक्शन चैप्टर। इसमें पर्टिकुलरली प्लांट में जो मैंने पहले डायग्राम बना के दिखाया था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का, उसका डायग्राम, उसके आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स, और ये वाला भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इससे आते हैं जरूर, ठीक है। तो सेम प्लांट, लेकिन अगर दूसरा प्लांट इन्वॉल्व है, ठीक है, अगर दूसरा प्लांट इन्वॉल्व है और इसके एंथर उड़ के यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, सो देन दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट, देन इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट। आंसर दे दिया है, आप देख लीजिएगा, आपको पता है कहां पे देखना है, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, राइट। इसको क्लियर कर देती हूं ताकि आपको ढंग से मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, हिट अ लाइक बटन। मजा आ रहा है तो हिट अ लाइक बटन, ठीक है। बहुत सारे सैंपल पेपर्स है बेटा, और भी करेंगे हम, ठीक है। बहुत सारे सैंपल पेपर्स है, और भी बहुत करेंगे। डिपेंड करता है आप कितना इस सेशंस को प्यार दे रहे हो, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर लव दैट यू शेयर विद अस, ठीक है। सो इन ह्यूमन मेल्स ऑल क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड perfectly except one. This or this unpaired chromosome क्या है? लार्ज क्रोमोसोम, स्मॉल क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम की एक्स क्रोमोसोम? चलो तो आपका काम हो गया ना, आसान हो गया ना काम आपका, है कि नहीं? आपको अपने क्वेश्चंस रिवाइज हो रहे हैं, उसके आंसर्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, राइट? लव, फैंटास्टिक, वेरी गुड। सो ऑप्शन यहां पे दिए है बेटा, ए, बी, सी या डी। तो यहां पे क्या होता है, सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं यूजुअली परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, राइट। जैसे कि हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस इज द सेक्स क्रोमोसोम, राइट, या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इसे। और जो बाकी के क्रोमोसोम्स है, राइट, बाकी के 22 पेयर्स जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द ऑटोसोम्स, राइट, दोज आर कॉल्ड एज द ऑटोसोम। सो 3 और 4 दोनों ही करेक्ट है। सो जो भी मेरे सारे होशियार बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ जी ये 3 और 4 है, सो यस, अ बिग अपलॉड फॉर यू, राइट। 3 and 4, राइट, 3 and 4 इज द करेक्ट वन। चलो, स्केच स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, या ये तो पक्का करके रखना, ठीक है। दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ ही जाता है अक्सर एग्जामिनेशन में, राइट। और आइदर डायग्राम पूरा बताने के लिए आएगा, या फिर ये जो क्वेश्चन है इस तरफ से आ सकता है कि सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबल ईच ऑफ द कंपोनेंट, द कंपोनेंट विच प्रोड्यूसेस एग, द लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नेम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो हाँ, एसटीडी के बारे में पूछा है इन्होंने, एसटीडी के बारे में पूछा है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक 5 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें इस चैप्टर से 5 मार्क बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। तो चलो बताओ फटाफट, which produces, which component of female reproductive system produces egg? Very good, very good। क्या बनाता है, कौन बनाता है? What is the major part of female reproductive system? Ovary is the major part of the female reproductive system. Fantastic. Now, location of fertilization. Fertilization कहाँ पे होता है? Very good, Vishnu. Yes, very good. Right.
अनुषिता, राइट, यस आयरिश, सही जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। टू बैक्टीरियल, गोनेरिया, राइट, सिफालिस, यस, बहुत अच्छे। व्हाट आर दी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, डिवाइस पूछा है, डिवाइस, डिवाइस में हम लिखेंगे आईयूडी। आईयूडी मतलब कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आपका कॉपर टी, ठीक है। मेंशन 2 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इन ह्यूमन, फैमिली प्लानिंग, राइट, उसी के लिए। सो हाँ, ये डायग्राम है, इस डायग्राम को आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना, इजी सा डायग्राम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट। फिर हो गया, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट एसटीडी। टू प्रिवेंट एसटीडी हम डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। टू प्रिवेंट एसटीडी इट इज ऑलवेज द बैरियर्स विच विल वर्क। बैरियर मतलब कि जैसे कि डायफ्राम या फिर कॉन्डम्स, राइट। बट आईयूडी जैसी चीजें जो है वो एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर सकती है, राइट। सो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रखने के लिए एंड टू डू अ फैमिली प्लानिंग, ऑलराइट, यस। चलो, नाउ सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोला है, बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जानना है, राइट। सो नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर सेवरल जनरेशन रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। मतलब कि बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन, कोई अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो reduction in weight of an organism due to starvation is genetically controlled, फिर बोला है लो वेट पेरेंट्स कैन हैव अ हेवी वेट प्रोजेनी। मतलब कोई सुकड़े सुकड़े पेरेंट्स है, उनका बेबी अच्छा हंसा खाटा मोटा हो सकता है, ठीक है। फिर ट्रेट्स विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशन डू नॉट कॉज एवोल्यूशन। सही है भैया, है ना, ये तो सही है। जो इनहेरिट ही नहीं होगा वो इवोल्यूशन कैसे कॉज करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। मैं देखूं जरा, क्यों ये डिलीटेड पोर्शन से, ये वेरिएशन से है विष्णु, वेरिएशन से है। गुप्ताज व्लॉग वेलकम। ये डिलीटेड पोर्शन से नहीं है, ये कहाँ डिलीटेड पोर्शन से है, ये वेरिएशन है। वेरिएशन आपका सबसे पहले ही आ जाता है जेनेटिक के चैप्टर में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के चैप्टर में आप पहले ही पढ़ लेते हो, ठीक है। ये डिलीट कैसे हुआ, वेरिएशन डिलीटेड है नहीं, ये बात कर रहा है यहां पे एक्वायर्ड ट्रेट की। क्या एक्वायर्ड ट्रेट कंसेप्ट डिलीटेड है मेरे बच्चों? यार वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन नहीं पढ़ा आपने, आप मिस कर गए इसको, फिर ध्यान से पढ़ना। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन पहला ही पैराग्राफ में दिया है, वेरिएशन के जैसे ही चैप्टर शुरू होता है। इवोल्यूशन डिलीटेड है, लेकिन इवोल्यूशन किस वजह से होता है ये बताया गया है। एक्यूमुलेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, राइट। पढ़ लिए फिर भी, राइट। तो ऐसे नहीं है, ऐसे मत सोचना इवोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं है आपको, इवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं है, डार्विन की थेरीज नहीं है, लेकिन वो होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन वेरिएशंस के फायदे नुकसान में है, राइट। तो ये याद रखना। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन, ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है, ये हमारे पोर्शन में है बेटा जी, इसको निग्लेक्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। तो ये बात कर रहा है इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में। तो रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। क्या ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड हो सकता है? मतलब कि अगर मैं अपना वेट कम कर लूं, ठीक है, तो क्या मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी दुबली पतली पैदा होगी? कोई गारंटी नहीं है, राइट। वो तो स्टारवेशन से किया है, वो मेरे को जीन्स में नहीं है दुबला पतला होना, राइट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। चलो
create a diagram with labels to demonstrate the following components, right, of pea seeds and embryo. अरे ये आधा ही आया है क्या? ठीक है. Following components of pea seed embryo. नहीं, ये तो बेसिकली वही बता रहा है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अपना डायग्राम, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, उसी को ड्रॉ करने के लिए कहा है. ठीक है, यही हमें ड्रॉ करनी है यहाँ पे. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ अ स्टूडेंट नोटिस्ड अ परमानेंट स्लाइड दैट एग्जिबिटेड हाइड्रा. हाइड्रा एक एनिमल है. ठीक है बेटा जी, हाइड्रा ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, asexual reproduction. Label the diagram observation of the students required to make. Also identify the reproductive process. Right? Also identify a reproductive process. ऐसे questions आपके CBSE में इस बार आएंगे क्योंकि this is called as the concept based question. बोला जा रहा था ना कि concept based questions आएंगे, concept based questions आएंगे. यही है यार concept based question. तो आपको थोड़ा पढ़ के समझना होगा. Very good budding, very good my buddies. It's about the budding, है ना. So यहाँ पे हो गया पेरेंट. पेरेंट को हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करोगे आप. ठीक है कि 1 2 3 4 स्टेज में क्या क्या हो रहा है. ठीक है, 1 स्टेज में फिर आपको लिखना पड़ेगा कि द बर्ड इज अराइजिंग. इन द डेवलपमेंट ऑफ बर्ड, द बर्ड डेवलप्स इनटू द न्यू ऑर्गन, डेवलप्स to a certain age, right, and develop the necessary organs. Till this stage it is dependent on the mother hydra, ठीक है, for its nutrition. Right, and new bird is now completely developed. After new bird is completely developed, it is detaching. It detaches from the parent and falls off, and a new hydra is formed. Right? चलो. A blue color flower plant, capital B, is crossed with white color flower plant, which is denoted as small b, capital B. ठीक है? So there was a cross between these two. Right? State the color of flowers you would expect in F1 generation. Come on. फटाफट बताओ. What is the answer for this? F1 जनरेशन में क्या होगा? क्या बोला गया है कि कैपिटल बी क्रॉस्ड विथ स्मॉल b. तो F1 जनरेशन में क्या सिचुएशन होगा बेटा जी? ओके एंजल, विष्णु, बिल्कुल सही. और बस, बाकियों को आंसर्स नहीं आ रहे. वेरी गुड. ब्लू रहेंगे, राइट. 100% डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, तो इसका आंसर आएगा blue, right. Then what must be the percentage of white flower plants in F2 generation if the flower in F2 plants were self pollinated? मतलब कि आप बोल रहा है कि इसको अगर हमने क्रॉस बनाया तो फिर इसका रिजल्ट कैसे आया? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग रजित. बताओ आंसर बताओ. व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज पूछा, रेशो बताना है. परसेंटेज रेशो से निकालोगे आप. ओके, ऑल राइट. जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है मैं समझा दूं एक बार. ठीक है, अब क्या होगा बेटा? अब हम पुनेट स्क्वायर डाल के देख लेते हैं. ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, है ना. सो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल बी मतलब कि ब्लू फ्लावर, कैपिटल बी स्मॉल बी,
फिर यहाँ पे होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और आखिरी में होगा स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे क्या होता है, 25% जो है वो होमोजाइगस बनते हैं, है ना। अगर हम इसे 100% मान ले तो होमोजाइगस कैसे बनते हैं, 25%, फिर चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर रेसेसिव ट्रेट हो। जो बचे हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, वो बनते हैं हमारे 50%, वो बनते हैं 50%। याद रखना बेटा जी, यहाँ पे आपको परसेंटेज में पूछा गया है ना, तो आप रेशो लिख के नहीं छोड़ोगे। या 1:2:1 इज द रेशो, राइट। कैसे 3:1 तो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक हुआ, है ना। 3:1 तो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक हुआ जो दिखाई देगा आपको। अब इन्होंने पूछ लिया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर कैसे बनेगा, स्मॉल बी से बनेगा ना, राइट, स्मॉल बी से बनेगा, तो इसीलिए, राइट, इसीलिए। चलो, सो इसका सही आंसर क्या है, 50%। गुड जॉब जय, राइट। तो इसका सही आंसर क्या है, 25% रहेगा। 50% किसका रहेगा, 50% होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट का। चलो, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स इन F2 प्रोजेनी। एक्सपेक्टेड रेशियो अब आप बताओगे, जीनोटाइप्स के एक्सपेक्टेड रेशियो अब आप बताओगे। फिर 3:1 पे आ गए आप। 3:1 पे कैसे आ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 3:1 पे कैसे आ रहे हो? जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो में डिफरेंस है कि नहीं है? फिनोटिपिक रेशियो है इसका 3:1। फिनोटिपिक मतलब देखने के लिए आपको तीनों ब्लू दिख रहा है। कैसे दिख रहे हैं तीनों? दिखने के लिए ब्लू दिख रहे हैं, ठीक है। ये है तो ब्लू, लेकिन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन में ब्लू है, तब हम कहेंगे 3:1। तो 3:1 क्या हुआ? फिनोटिपिक रेशियो हुआ। व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो? व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो? जीनोटिपिक रेशियो, थोड़ा यहां पे भी ध्यान दीजिए, है ना। थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान करेंगे, अभी हम फोकस करेंगे, राइट। ओके, चलो नाउ हाँ, ये हो गया, आंसर तो मिल गया। ए फंटास्टिक आ गया अभी अपना एकदम बढ़िया वाला। बताते जाओ, राइट राइट, कि अब क्या होने वाला है, इसकी प्रोजेनी कैसे बनेगी। तो क्रॉस यहां पे बना है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस किया गया है। बताओ तो प्रोजेनी कैसे बनेगी, क्या होगा प्रोजेनी कैसी रहेगी इसकी? गुड इवनिंग। एक कब से आए हो? अभी गुड इवनिंग मैम बोल रहे हो आप? यहां पे प्रोजेनी ऐसे ही बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देयर वुड बी एब्सोल्युटली नो चेंज, एब्सोल्युटली, वेरी गुड विष्णु, राइट, देयर वुड बी नो चेंज एट ऑल, राइट। नेक्स्ट इज दिस वन, हेट्रोजाइगस में क्रॉस हुआ है, तो फिर कैसे बनेगी प्रोजेनी? No, beta, I don't know Malayalam. Right? No, I do not know Malayalam. Hindi, English. Right. So now, yeah, tell me, what would be the progeny over here? What would be the progeny over here? You can teach me a bit, right? My friends used to teach me. I had lot of Malayali friends, by the way. So, yeah, cannot read at all. What would be the progeny? Malayalam is not the God's own country. Kerala is the God's own country.
Yes, Jay. True that. Okay. Come on. Tell me the progeny. बैठे बैठे तुम इंडिया का चक्कर करवा रहे हो मेरे को. प्रोजेनी बताओ पहले. हैं? प्रोजेनी बताओ. नहीं होगा. नहीं होगा. क्या बात है. ठीक है, चलो मैं ही कर देती. तुम लोगों से नहीं हो रहा अभी. ठीक है, प्रोजेनी कैसी होगी. यहाँ पे राउंड एंड येलो ही प्रोजेनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, पहला ही प्रोजेनी हमें बनाना है, F1 जनरेशन ही बताना है, तो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इनके कैसे होंगे, राउंड एंड येलो ही रहेंगे बेटा. ठीक है, राउंड एंड येलो ही रहेंगे. अब यहाँ पे जब ये स्थिति होगी, स्मॉल आर स्मॉल वाई मतलब कि व्रिंकल्ड एंड ग्रीन है, तो इनका होमोजाइगल स्टेट होने की वजह से इनके बच्चे कैसे बनेंगे, इनके बच्चे सारे के सारे बिल्कुल उन्हीं के जैसे बनेंगे, कोई वेरिएशन आने का चांस नहीं होगा. राइट. सो wrinkled ग्रीन ही बनेंगे. यस. देन कैपिटल R कैपिटल Y into small r कैपिटल Y. Now what would be the situation over here? इनकी प्रोजेनी कैसी बनेगी, इनकी प्रोजेनी बनेगी, इसका गमिट आएगा कैपिटल R कैपिटल Y, इसका आएगा स्मॉल r स्मॉल y. तो यहां पे बन जाएगा ये परिस्थिति हमारा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. Right? Good evening नितिन. ठीक है, अभी आ रहे हो. ओके, करेक्ट एंजल. फंटास्टिक. यस जय, राउंड एंड येलो बनेंगे. वेरी गुड. राइट. सो विद दिस गाइज, आई होप यू हैड लॉट ऑफ फन टुडे. ठीक है, हम और पेपर्स लेके आएंगे आपके लिए, बट फॉर दैट यू हैव टू शो सम लव टू दिस classes. Okay, you have to hit a like button for this class for sure, right? So yes, I'll meet you soon with the next paper. आप जानते हो कि क्या करना है, आप जानते हो कि टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका PDF आपको मिल जाएगा, वो कलेक्ट करना है, right? And see you next time. Till then, be happy, keep learning, stay this curiosity, okay? And see you soon. Don't forget to like the class.